बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher Sarja, teaching you General Science of class 6th. We will have last lecture of chapter 7, which is electricity and energy. Today we will do exercise of this chapter, but before starting the exercise, let's have some revision of this chapter. Dear students, our first article of this chapter was energy arrows. I told you that energy can neither be created nor destroyed, but it can be changed from one form to the other form. For example, petrol that has chemical energy, it can be changed into kinetic energy, it can be changed into sound energy, it can be changed into heat energy, etc. In the same manner, we have electrical energy. When the electrical energy that passes through the bulb, it is changed into light energy and heat energy. And when the same electrical energy that passes through the heater, the energy that changes into heat energy. We have a number of examples by which we can show that the energy can be changed from one form to the other form. बेटा ये रिवीजन है, थोड़ा सा हम काम जो वो जल्दी करेंगे क्योंकि पहले लेक्चर्स में ये बात हो चुके हैं। उसके बाद हमने एनर्जी एरोज की बात की थी और मैंने आपको बताया था दैट अ सिंपल वे ऑफ शोइंग एनर्जी कन्वर्जन्स एंड वेयर द एनर्जी गोज इज टू ड्रा a diagram which is known as the Sankey diagram. The width of the arrows gives an idea of the amount of different forms of energy. The thicker the arrow, the greater the amount of energy. Sankey diagram में हमने एनर्जी एरोज जो ड्रा किए थे, जो उसकी थिकनेस है दैट गिव्स अस द अमाउंट ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमने पावर सप्लाईज और वोल्टेजेस की बात की थी एंड आई टोल्ड यू दैट ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स नीड्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू फोर्स द करंट टू फ्लो. The driving force of current is called voltage and the unit of voltage is volt. It is also termed as potential difference. Batteries and other power supplies are labeled with voltage values. The voltage or the potential difference that can be measured with the help of an electrical device which is known as voltmeter. And remember that to measure the potential difference or the voltage across any electrical appliance, the voltmeter is always connected in parallel with that electrical appliance. And also remember that to measure the current, we use another electrical device which is known as ammeter, and the ammeter that is always connected in series in the circuit. Also remember that the unit of current is ampere.
दो यूनिट्स आपको बता चुका हूँ. द यूनिट ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट represented by capital V, and the unit of current is ampere and it is represented by capital A. उसके बाद हमने आर्टिकल पढ़ा था रेजिस्टेंस, एंड आई टोल्ड यू दैट रेजिस्टेंस is an electrical quantity that measure the hinderness to the flow of charge. और एक और डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को, आसान भी है याद करने में भी, that it is the opposition offered to the flow of charge. ये हम रेजिस्टेंस आम जो ज़बान में इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं वो रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. और दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, वन इज द थिकनेस. अ थिन वायर दैट विल हैव मोर रेजिस्टेंस एंड अ थिक वायर दैट विल हैव लो रेजिस्टेंस. इसके अलावा नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करती है. जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, निक्रोम वायर हैज मोर रेजिस्टेंस वेयर एज कॉपर वायर दैट हैव लेस रेजिस्टेंस. और ये बात भी आपने जो ज़हन में रखनी है, दैट द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, और इसको एक ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है. और रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ओम्स लॉ को यूज़ किया जाता है. ओम्स लॉ की डेफिनेशन मैंने जो वो कई दफ़ा रिपीट की थी. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट. मैथमेटिकली वी कैन राइट इट एज V इज इक्वल टू IR. और मैंने आप लोगों को ये बात भी जो बताई थी, रेजिस्टेंस कि कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेजेस में एक बड़ा इसके जो डिसएडवांटेज है कि हमारी बहुत सारी यूजफुल एनर्जी जो है दैट इज यूज टू ओवरकम दी रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए यूज हो जाती है, और रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारी जगहों पर अनवांटेड हीट प्रोड्यूस होती है, और कई दफ़ा यही जो हीट है ये कई बड़े हादसात का सबब बनती है. लेकिन इसके साथ साथ जो रेजिस्टेंस है इसकी कुछ फ़वाइद भी हैं. उसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा है दैट द रेजिस्टर्स दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द करंट. बहुत सारी डिवाइसेस में बहुत सारी चीज़ें जो लगी होती हैं जिनको डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट जो वो रिक्वायर्ड होती है, और ये जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट है जो उसको प्रोवाइड करना होती है, इसको कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द रेजिस्टर्स. हम मुख्तलिफ रेजिस्टर्स लगाकर करंट को जो कंट्रोल करते हैं, और जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट होती है किसी भी डिवाइस के लिए उसको हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट उसको प्रोवाइड कर सकते हैं. रेजिस्टर्स की दो टाइप्स मैंने आपको बताई थी. हमारे पास फिक्स रेजिस्टर्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, और कुछ हमारे पास रेजिस्टर्स होते हैं विच आर नोन एज दी वेरिएबल रेजिस्टर्स, और इनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक. और मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को उसमें एक डिमर की आपको जो एग्जांपल दी थी, और एक रियोस्टेट की एग्जांपल आपको दी थी. रियोस्टेट, उसमें एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट लगा होता है. स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करवा कर हम रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं. इन द सेम मैनर विद द हेल्प ऑफ द डिमर करंट को कंट्रोल करके पंखे की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है. उसके अलावा मैंने आपको जो वो आगे हमने जो बात की थी सेफ्टी एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसके मतलब बात की थी
लेकिन ये बात करने से पहले हमारे सिलेबस में नहीं था, उसको हमने छोड़ दिया था। याद रखिएगा, हमारे पास करंट दो किस्म की होती है। वन इज नोन एज द डायरेक्ट करंट, सेकंड वन दैट इज नोन एज द अल्टरनेटिंग करंट। हमारे पास जो बैटरीज वगैरह है उनसे हमें जो डायरेक्ट करंट जो मिलता है, जिसको डीसी करंट भी जो कहा जाता है, जबकि पावर स्टेशन से हमारे घरों में जो करंट हमारे पास आ रहा है दैट इज नोन एज दी अल्टरनेटिंग करंट। और ये बात भी जो अपनी याद रखनी है कि हमारे पास जो करंट आ रहा है उसकी वोल्टेज है दैट इज घरों में दैट इज 220 वोल्ट। दो वायर्स हमारे घरों में आ रही होती हैं, वन इज नोन एज द लाइव वायर एंड सेकंड वन दैट इज नोन एज द न्यूट्रल वायर। Live wire that is at 220 volt whereas neutral wire that is at 0 volt। और ये दोनों इनका जो डिफरेंस हमारे पास बनता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट। अब जाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, लेकिन इससे इसके जरिए शॉक भी लग सकता है, इसका नुकसान भी है, डैमेज भी कर सकती हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। अगर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो वो ज़्यादा मिले, करंट ज़्यादा मिले, वो डैमेज भी हो सकती है। इसलिए उस डैमेज से बचाने के लिए इनमें फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है, सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखें दैट द फ्यूज़ दे आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। और सर्किट ब्रेकर जो हमारे पास आज कल फ्यूज़ का इस्तेमाल कम किया जाता है, सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सर्किट ब्रेकर जैसी करंट जो है ख़ास अमाउंट से ज़्यादा होती है, सर्किट ब्रेकर जो सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, नतीजे के तौर पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो स्विच ऑफ हो जाती है और हम उसको दोबारा जो यूज़ कर सकते हैं। ये चंद जो वो बातें थी। और उसके साथ आखिरी बात एनर्जी फॉर एवरीडे यूज़। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था दैट द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी दे आर ऑयल, गैस, नेचुरल फ्यूल, वाटर एंड कोल। इन्हीं की मदद से ये जो हमारे पास सारी चीज़ें जिनका नाम मैंने जो लिए हैं, इन्हीं को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। जहाँ पर बनाया जाता है दे आर नोन एज दी पावर हाउसेस। तो मेनली इसमें वाटर को हीट करके स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द स्टीम। टरबाइंस को चलाया जाता है। व्हेन द टरबाइंस वर्क, तो ऐसे शुरू में आगे जो जनरेटर्स को चलाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये तो एक ओवरव्यू था इस चैप्टर का। अब हम आगे जो है चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के हवाले से। हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस की तरफ चलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यू कैन ओपन योर बुक्स ऑन पेज 104। पेज 104 MCQs। जिन लोगों ने ये लेक्चर जो है गौर से सुना होगा उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा इनको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ Sankey डायग्राम the amount of each form of energy produced is represented by the angle of each arrow, color of each arrow, length of each arrow, width of each arrow। ये हमारा MCQ है। Sankey डायग्राम है द अमाउंट ऑफ ईच फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट कर रही होती है। शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय विड्थ ऑफ ईच एरो। जो एरोज बने हुए हैं उनकी जो विड्थ है वो हमें उस एनर्जी के मतलब बताती है। देयरफॉर डी दैट इज करेक्ट। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। Number 2, another name of voltage is potential difference, potential energy, potential similarity, potential variation।
तो ये चीज़ बार बार आपको बताई गई है। वोल्टेज को हम जो नाम देते हैं, दूसरा इसका जो नाम है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। तो आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी में आपको यही नाम जो पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज से भी ज़्यादा आपको पोटेंशियल डिफरेंस का नाम अगली क्लासेस में मिलेगा। उसके बाद थर्ड MCQ, electrical resistance is measured in amperes, ohms, volts, watts। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हमने वोल्टेज की बात की थी, वोल्टेज को वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। करंट की बात की थी, करंट को एम्पियर्स में मेजर किया जाता है। और रेजिस्टेंस को ओम में बताया था, इसको ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो डी इज करेक्ट। इसमें जो वाट है, वैसे आपको बता दूं, आपकी जो है दिलचस्पी के लिए, वाट जो है पावर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन बेटा, चूंकि ये हमने आर्टिकल नहीं किया, इसलिए अभी ये हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। इसका फिलहाल भी हमारे पास ये आउट ऑफ कोर्स है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन अ कोल फायर्ड पावर स्टेशन। पावर स्टेशन अभी थोड़ी जैसे रिवीजन में एंड में हमने बात की थी, तो पावर स्टेशन में कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन अ कोल्ड फायर पावर स्टेशन, कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं पावर स्टेशन में, डेफिनेटली कोल जो है दैट इज केमिकल एनर्जी। इसमें केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ come to true and false. The efficiency of a device tells you how good it is at converting energy from one form into another. The efficiency of a device, efficiency का क्यों बाकायदा टॉपिक नहीं था, हमने बात ज़्यादा इसमें, ज़्यादा क्या इसमें बात हमने की ही नहीं है, लेकिन चूँकि MCQ है तो इसमें ये हमारे पास बात ठीक नहीं है। एफिशिएंसी बेसिकली हमारे पास आउटपुट बाय इनपुट, कि हमारे पास आउटपुट कितनी है वो हमें बताता है। किसी की डिवाइस की आउटपुट के मतलब हमें एफिशिएंसी बताती है। तो ये जो वो हाउ गुड इट इज़ एट कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, दिस इज नॉट करेक्ट, इट इज फॉल्स। नाउ the second one, like an ammeter, a voltmeter always connected in series with the electrical component being tested। याद रखना है, दो बातें बार बार रिपीट की थी। द voltmeter that is always connected in parallel, ammeter that is always connected in series। तो voltmeter ये लिखा हुआ है, voltmeter is always connected in series, no, this is not correct। Third one, a variable resistor has a sliding contact। सही बात। As the contact is moved, contact को जैसे मूव किया जाता है, the length of the resistance wire connected in the circuit changes and so the current stays same, no। जिस वक्त लेंथ चेंज होती है, रेजिस्टेंस उसकी चेंज होगी, रेजिस्टेंस चेंज होगी, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, सेम नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। इसलिए ये भी हमारे पास फॉल्स है। आई थिंक ये तीन वर्ड है, तीनों के तीनों फॉल्स। फोर्थ वन, अल्टरनेटिंग करंट AC इज सेफर देन डायरेक्ट करंट। ये बेटा हमने क्योंकि आर्टिकल जो है वो डिटेल से नहीं पढ़ा, सिर्फ आपको मैंने बताया एक अल्टरनेटिंग करंट, दो किस्म का अल्टरनेटिंग करंट होता है और डायरेक्ट करंट होता है। बेटा ये कभी क्लास में अगर बात होगी तो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इट इज़ सेफर देन दी डायरेक्ट करंट। ठीक है, हम AC की शॉक से बच सकते हैं। DC का अगर शॉक हो तो DC के शॉक से बचना तकरीबन नामुमकिन है।
लास्ट वन बेटा, द ग्रेटर द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द मोर क्विकली इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम द मेंस। जितनी इलेक्ट्रिकल जिसकी पावर ज़्यादा होगी, जैसे कि भी मोटर्स उनकी पावर ज़्यादा होती है, आयरन उसकी पावर ज़्यादा होती है, तो मेन से इतनी जल्दी जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हासिल करती है। सो इट इज़ करेक्ट। तो बेटा एक्सरसाइज में ये हमारे पास ये दोनों चीज़ें शामिल थी, MCQs और ट्रू फॉल्स। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों ने बुक के ऊपर इसको सॉल्व करना है, कापीज़ के ऊपर जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। इसी वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन सब्जेक्ट ग्रुप में पुट कर सकते हैं। तो इसी के साथ बेटा अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको आसानी नसीब फरमाए और आसानी तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अपना और अपने बहन भाइयों का, वालिदैन का ख्याल। अल्लाह हाफिज़।